Hello, myself Anuradha Kashyap. I am applying for the zoology teacher for NEET students, and I am basically from Haryana but living in Delhi right now with my family. I had completed my BSc Honours Zoology from Delhi University from Miranda House College, and after that I had completed my post graduation from MSc Biotechnology from Karnal from Kurukshetra University in Haryana. I had done lot of internship during my graduation from Miranda House University. I also qualified NEET many times. You can see over the screen that I qualified NEET for the 4 times, and I have 3 year of experience. I was teaching since 2020. Um, uh, I was teaching biology from 2020 to 2022 in Haryana in Karnal, and after that I am doing job in Delhi in Janakpuri, and I am doing job as a zoology faculty in Janakpuri, and I had worked with MedIIT Institute, Vidya Bhavan Institute, which is located in Janakpuri in Delhi. And after that, I was working in, and the last company was the last coaching institute was a Target PMT, which is also a brand in Delhi, in Delhi. And totally, I have experience of 3 years in which I taught biology, complete biology, that is botany plus zoology, in for 2 years, and for last 1 year I was teaching zoology. But my specialization is in zoology. So I am here for for the application of zoology candidate. Next question you was asking to me that why I am a suitable candidate for your coaching institute. So I think I had a very progressive mind, which is a plus point for me and for you also. And second thing you can think about it that I am a very learning candidate. I want to learn many things. I want to learn from students. I want to learn from books. I want to increase my knowledge. I want to be updated with the time. So which is a plus point. And the third point, I think I can make interaction beautifully with the students, which is a very good point for everyone. And the student can easily interact with me. Students can understand the concept of I because I think I have a core knowledge of the concept, which is a plus point for everyone. And in zoology, I know very well that which concept is most important and which concept is less weighted. So I can I can teach accordingly that which concept have heavy weightage and which concept is low weightage. So accordingly I can teach. And the fourth point that I am also I am not a shy person to face camera because I am running right now YouTube channel for the NEET students for biology teacher as a biology teacher. So I think it is a good point for your institution also because I am not as much camera shy person, right? So the third question you was asking that what will be the plan for 100 hours, and here you can see I divided two categories. मैंने 11th क्लास की zoology and 12th क्लास की zoology को separately divide किया है and you can see over the screen that अगर आप मुझे per classes जो है वो 1 घंटे की देते हो उस according मैंने अपने chapter को divide किया हुआ है. Here you can see for 11th class 7 क्लासेस मैंने रखी हैं एनिमल किंगडम चैप्टर के लिए. अब वो किस तरीके से रखी है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए. अगर मैंने 7 क्लासेस की बात की है तो उसमें से 6 क्लासेस जो है मेरी वो थ्योरी पोर्शन को जाएंगी एंड जो मेरी 1 क्लास होगी वो मेरा PYQ कवर करेगी. तो हर एक क्लास में पहली सारी क्लासेस मेरी जाएंगी थ्योरी के लिए एंड द लास्ट क्लास होगी हमारे PYQ के लिए. तो ये मेरा 100 डे का प्लान रहने वाला है जिसमें एनिमल किंगडम 7 क्लास, एनिमल टिश्यू 3 क्लास में कंप्लीट होगा. हर क्लास 1 घंटे की रिक्वायर्ड है. कॉकरोच के लिए 4 क्लासेस जाएंगी. फ्रॉग विच इज नाउ एडिंग टॉपिक इन नीट, फ्रॉग के लिए 3 क्लासेस होंगी. बायोमोलिक्यूल में इट इज अ टफ एंड कॉम्प्लेक्स चैप्टर सो इसके लिए आप मुझे 5 क्लासेस देंगे. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं अगेन इट इज अ वेरी स्कोरिंग यूनिट तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के लिए कंप्लीटली 6 क्लासेस मेरी जाएंगी. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के लिए 7 क्लासेस होंगी एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए अगेन 7 क्लासेस हैं.
लोकोमोशन एंड मूवमेंट की 7 क्लासेस होंगी, नर्वस सिस्टम की 6 क्लास हैं, एंड सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन को मैं दोनों अलग अलग करके पढ़ाती हूँ। तो नर्वस सिस्टम के लिए मुझे 6 क्लासेस चाहिए होंगी जिसमें मैं ब्रेन को डिटेल में बताऊंगी। एंड उसके बाद हम सेंस ऑर्गन की अगर आप बात करेंगे तो सेंस ऑर्गन जिसमें हम आई और ईयर की बात करेंगे तो वो मेरे लिए 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा। उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसके लिए 6 क्लास जाएंगे, तो ओवरऑल 63 क्लासेस यानी 63 आवर्स जो है वो 11th क्लास के लिए होंगे। एंड उसके बाद 12th क्लास की जुआलॉजी की बात करें तो इसमें भी सेम रहेगा, पहली क्लासेस थ्योरी के लिए होंगी, लास्ट की क्लास पीवाईक्यू के लिए होगी और हर एक क्लास 1 घंटे की होगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए 8 क्लासेस होंगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ विच इज अ गुड स्मॉल चैप्टर, उसके लिए 4 क्लासेस हैं। इवोल्यूशन के लिए 7 क्लासेस हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लिए 8 क्लासेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के लिए बड़ा चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, इसलिए 6 क्लासेस जाएंगी एंड बायोटेक एप्लीकेशन के लिए 4 क्लासेस हैं। तो बेसिकली जो सिलेबस है वो 12th का इन कंपैरिजन टू 11th क्लास थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए यहाँ पर मेरी जाएंगी टोटल 34 क्लासेस। और अगर मैं बात करूँ 11th की तो यहाँ पर मेरी जाएंगी 63 क्लासेस। इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीटली हम 100 आवर्स का प्लान बना चुके हैं। 63 आवर्स जो होंगे 11th के लिए हैं, 34 आवर्स जो हैं वो हमारी 12th क्लास के लिए रहने वाली हैं। नाउ मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहूंगी आपकी बायोलॉजी के एक टॉपिक पे, जुआलॉजी के एक टॉपिक पे, जो कि मेरा लिया गया है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, जिसको मैंने लिया है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल वाले चैप्टर से, बायोटेक प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें, आरई का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडो का मतलब होता है अंदर एंड न्यूक्लियस जो है वो मेरे पास एक कैटेगरी है जो एंजाइम की बड़ी कैटेगरी है, दिस इज एंडोन्यूक्लियस। अब इसको थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करके बताती हूँ। न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस जो है ये एक कैटेगरी है, क्लास है एंजाइम की, जो कि एक बिग क्लास है। इस एंजाइम की क्लास के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है एक्सो और एक आता है एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का क्या मतलब है, सपोज यू हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अगर इस डीएनए पर मुझे कट लगवाना है और वो कट आउटर साइड पर लगे, यहां पर लग गया, यहां पर लग गया, मिडल में ना लगे, तो तब कौन से एंजाइम काम करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। अगर मुझे मिडल में डीएनए लगवा, मिडल में कट लगवाना है, तब कौन से एंजाइम काम करते हैं, एंडोन्यूक्लियस, यानी एक ऐसा एंजाइम की कैटेगरी जो कट लगा देती है डीएनए के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसका मतलब ये डीएनए के अंदर कट लगवाने वाला है, मिडल में कट लगाने वाला है। तो रिस्ट्रिक्शन क्यों रखा गया, क्योंकि ये बहुत ही पर्टिकुलर होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये हमारे पास प्रोकैरियोट से हमें मिलते हैं। प्रोकैरियोट में एक मैकेनिज्म चलती है जिसको आप बोलते हो डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे चलती है मैं आपको बता देती हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करें, सपोज वी हैव बैक्टीरिया एंड इस बैक्टीरिया पे एक बैक्टीरियोफाज आता है। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, एक ऐसा वायरस विच कैन फीड अपॉन द बैक्टीरिया, उसको हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। दिस इज द मेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। एंड ये जो बैक्टीरियोफाज आता है, ये बैक्टीरियोफाज हमारे पास अपना प्रोकैरियोट के अंदर अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है और इसकी मशीनरी को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से वायरस की तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है बाय लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, बट जो हमारा प्रोकैरियोट है उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि इसकी सर्वाइवल के लिए प्रोटीन नहीं बन पाती। तो इस बैक्टीरिया ने क्या सोचा कि मैं एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूँ। इस डिफेंस मैकेनिज्म में इसने 2 डिफरेंट काइंड के एंजाइम बनवाए। इन डिफरेंट काइंड के एंजाइम में इसने एक एंजाइम बनवाया जिसको बोलते हैं मिथाइलेज, दिस इज मिथाइलेज। एंड एक एंजाइम इसने बनवाया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इसका क्या काम है, देखिए मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो वो तो डीएनए पे कट लगाएगा और डीएनए पे कट लगाएगा तो वो तो इसके मेन जीनोम पे कट लगा देगा, ऐसे में तो इकोलाई की खुद डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर इस डीएनए पर मिथाइल ग्रुप लगा हो
तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको पहचान नहीं पाएगा। इसका मतलब मिथाइलेज इस पे क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। नाउ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन नॉट रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस इनसाइड द प्रोकैरियोटिक डीएनए। इसकी वजह से इकोलाई तो बच गया, लेकिन जो बाहर से एक्स्ट्रा डीएनए आ रहा था बैक्टीरियोफाज का, उसको पहचान लिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं लगा था और उसको क्या कर दिया, उसने चोप अप कर दिया। इस वजह से बैक्टीरियोफाज की डेथ हो गई। अब बैक्टीरिया ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये जो थे, ये तो डिफेंस के लिए प्रोकैरियोट में बनने शुरू हुए थे, बट इसको हमने अपने यूज के लिए बनाना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया। टिल नाउ मोर देन 900, मैं एनसीईआरटी का डाटा बता रही हूँ, मोर देन 900 restriction endonucleases are discovered from 230 strain of bacteria। अभी मैं डीप में नहीं जा पाऊंगी, डिटेल में नहीं जा पाऊंगी इस लेक्चर की, बट मैं एक चीज बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, बाम H1। इसका अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, तो नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड सेकेंड टू वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे स्पीसीज को। थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा आपकी डाई या फिर स्ट्रेन को, एंड फोर्थ वर्ड रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। किस ऑर्डर में आपने इनको रिमूव किया है बैक्टीरिया से, उसको बोलोगे आप ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ RE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यहाँ पर जीनस क्या है, बेसिलस, और स्पीसीज क्या है, एमाइलो लिक्विफेशियम। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसी तरह इको R1 होता है, एस्चेरिचिया कोलाई से मिलेगा। बाम H1 होता है, जैसे मैंने लिखा है, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियन। ALU1 होता है, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। SMA1 होता है, सीरेशिया मार्सिसेंस। तो ये क्या करते हैं, ये पूरे डीएनए में अपनी पर्टिकुलर साइट को पहचानते हैं। सपोज दिस इज द पर्टिकुलर साइट जहां पर इनको कट लगवाना है। इस पर्टिकुलर साइट में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को देखेंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती हैं जिनको दोनों साइड से सेम पढ़ सकते हो, जैसे मैडम, MADAM, कहीं से पढ़िए आप दोनों सेम समझ आएंगी। मलयालम कहीं से पढ़िए सेम समझ में आएगी। इसी तरह अगर मैं इको R1 की बना के बता दूं आपको, तो ये होगी GAATTC, और इसी तरह यहाँ पर क्या होगी, GAATTC। 5 प्राइम से 3 प्राइम अगर आप रीड कर रहे हो तो आपको ये सेम मिलेगी। तो दिस इज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर इकोलाई, और इसके अंदर भी वो G और A पर जाकर के कट लगाएगा, तो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर इकोलाई। तो इस तरीके से हमारा डीएनए काम, हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है और पूरी जगह पर कट लगाता है। आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, इसलिए मैं इसको यहाँ पर अभी इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बट आई होप आपको मेरा तरीका समझ में आया होगा पढ़ाने का। एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन अन अकेडमी ऑल्सो। तो अगर आप मुझे मौका देते हैं, तो आई थिंक मेरे लिए भी एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूविंग वे होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे कंसिडर कीजिए एज अ कैंडिडेट, एंड जो भी हमारा आगे प्लान होगा वो हम उस अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।